مجھے آرام کرنا ہے، اتنی گرمی سے اوپر یہ تھکا دینے والا سفر۔ اس کے جتنے بھی کزنس تھے اور چچا چچیاں تھیں وہ تو بس منہ کھولے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ وہاں پر جتنی لڑکیاں تھیں سب نے سروں پر دوپٹے کر رکھے تھے، مگر وہ اس وقت شارٹ کرتی اور جینس میں وہاں پر کھڑی تھی، بالوں میں اپنا بلیک چشمہ اٹکایا ہوا۔ وہ واقعی کوئی فلمی ماڈل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سب کو نظر انداز کر دیا۔ جیسے ہی کمرے میں گئی تو چھت پر لگا ہوا پنکھا دیکھ کر اس کا دماغ گھوما تھا۔ کہنے لگی، واٹ دی ہیل، اے سی کہاں ہے؟ مجھے اے سی چاہیے اس کمرے میں۔ اس کے چچا کی بیٹی کومل ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہاں پر اے سی تو کوئی نہیں ہوتا، وہ تو شہروں میں ہوتا ہے، یہاں تو ہر کمرے میں بس یہ پنکھے ہی لگے ہوئے ہیں۔ وہ منہ بزورتی ہوئی اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ جس قدر اسے غصہ آ چکا تھا وہ کومل نے تو وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ ہمیشہ وہ شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر میں ہی سویا کرتی تھی، لیکن جان بوجھ کر آج اس نے نائٹی نکالی تھی جو مکمل طور پر جالی دار تھی، جس کے نیچے جو بھی پہنا ہوا تھا سب واضح نظر آ رہا تھا۔ اس نے یہ نائٹی اپنے گھر میں صرف ایک دو باری پہنی تھی، وہ بھی تب جب ابرار صاحب کسی کام کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور اس کی ماں گھر پر تھی۔ لیکن آج جان بوجھ کر واش روم میں جا کر نہانے کے بعد اس نے وہ پہن لی تھی اور پہننے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تبریز خانزادہ زمینوں سے گھر لوٹا کر آیا تھا اور اتنے سالوں کے بعد تبریز خانزادہ صاحب کو دیکھ کر فرزانہ بیگم تو اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ واقعی ہی وہ بے تحاشا خوبصورت تھا۔ اونچا لمبا قد اور پرکشش شخصیت۔ خاندان کی کئی لڑکیاں تھیں جو تبریز خانزادہ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کی ساس کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے اپنی منگیتر کا نام ہی سنا تھا۔ یہی سوچتا رہتا کہ نہ جانے وہ اب کیسی ہو چکی ہوگی، کیسی دکھتی ہوگی۔ یقیناً وہ بھی میرا انتظار کرتی ہوگی۔ ابھی بھی وہ گھر میں آیا تو سب دیکھ کر وہ بڑے پرتپاک انداز میں ان سے ملا تھا۔ اس کی نظریں ابھی بھی روشانے کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ تبھی کامل اس کے پاس آئی جو اس کے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی۔ سبھی اسے لالا کہتے تھے۔ شرمائے شرمائے انداز میں کہنے لگی، تبریز لیلا جان، کیا بات ہے، آپ کی نظریں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تو تبریز اسے گور کر دیکھ کر کہنے لگا کہ نہیں کچھ بھی نہیں، میں بس یہی دیکھ رہا تھا کہ کیا صرف چچا چچی ہی آئے ہیں۔ کومل کہنے لگی کہ سیدھی طرح بولے نا کہ آپ اپنی ہونے والی ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ان کے کمرے میں ہے، جائیے جا کر مل لیجیے۔ وہ دوپٹے کے پلو کو منہ میں ڈالتی ہوئی وہاں سے بھاگ چکی تھی، جبکہ تبریز اندر ہی اندر خوش ہو چکا تھا۔ دل بڑے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد اسے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ یقیناً شرمائی سی ہوگی۔ باقی سب تو اپنے باتوں میں مصروف تھے۔ جب وہ راہداری سے ہوتا ہوا اس کے کمرے تک آیا، اس نے دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک پر ہی اندر سے ایک زوردار آواز آئی تھی، کون ہے؟ آ جاؤ اندر۔ اس کی آواز تھی تو کافی میٹھی اور سریلی، لیکن جس انداز میں وہ بولی تھی وہ انداز بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ جیسے ہی تبریز دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ گم ہو چکا تھا۔ روشانی اس وقت اسے بے باک نائٹ ڈریس میں نیم دراز بیٹھی تھی، ہاتھ میں موجود الیکٹرک فین میں خود کو ہوا دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے ہی اس حلیے میں دیکھ کر تبریز کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ پینڈلیوں تک وہ مکمل بے لباس تھی اور اس کے اوپر جو پردہ تھا وہ بھی نیٹ کا بنا ہوا تھا۔ اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ تبریز خانزادہ کو تو غصہ آ چکا تھا۔ یہ لڑکی بے تحاشا خوبصورت تھی، لیکن جس حلیے میں بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ہی روشانی نے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس اس ہٹے کٹے نوجوان کو اپنے کمرے میں کھڑا دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی، چٹکی بجا کر کہنے لگی، او ہیلو مسٹر، شرم نام کی چیز نہیں ہے تم میں؟ کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ مجھے تو لگا تھا کہ کوئی لڑکی ہوگی، ایک بار پھر سے میرا سر کھانے آ رہی ہوگی، لیکن تم کہاں سے منہ اٹھا کر میرے کمرے میں گھسے چلے آ رہے ہو؟ ہٹر بٹر چلتی روشانی کی زبان سن کر تبریز خانزادہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی یہ انداز بھی رکھ سکتی ہے۔ اسے وہیں سے پکڑ کر دیوار سے لگا چکا تھا اور روشانی اس افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس کا تو سانس ہی رک چکا تھا۔ بڑے زور سے اسے کمر سے کھینچ کر اس کا منہ پکڑ چکا تھا اور کہنے لگا، ہونے والا شوہر ہوں تمہارا، ذرا تمیز سے، اور یہ کس حلیے میں بیٹھی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ بہت شوق ہے ایسے کپڑے پہننے کا تو شادی کے بعد میرے سامنے پہننا، اور اس کمرے میں ابھی تم پہن کر بیٹھ جاؤ۔ اگر میرے علاوہ یہاں پر کوئی اور کمرے میں آ جاتا تو؟ روشانی نے جب اس شخص کے الفاظ سنے تو وہ ایک پل کے لیے چپ سی ہو چکی تھی۔ اچھا تو یہ تھا تبریز جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے کیا گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے غصے سے اسے دھکا
मार कर कहने लगी, तुम जैसे गांव के मर्दों की मेंटालिटी होती ही यही है कि औरतों को अपना गुलाम बना कर रखना चाहते हो, लेकिन मैं खुद को कभी भी तुम्हारा गुलाम बनने नहीं दूंगी। तुम होते कौन हो मुझे ऐसा कहने वाले? शादी करनी है तो तुमसे मेरी जूती। इसके ये काटदार अल्फाज सुनकर तो तबरेज़ साकिन हो चुका था। उसने जो कुछ उसके लिए सोच रखा था वो उसके बिल्कुल उलट साबित हो चुकी थी। एक झटके से उसे छोड़ता हुआ कहने लगा कि तुम इंतहाई बदतमीज़ और ढूंढ किस्म की लड़की हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने सालों के बाद तुम्हारे साथ होने वाली पहली मुलाकात ऐसी होगी। तभी तुम्हें इब्रार चचा यहाँ पर लेकर आए हैं। अब मैं तुम्हारी अक्ल में ही ठिकाने लगा हुआ। यही गाँव का मर्द तुम्हारी नाक में नकेल डालकर तुम्हें अपना सब कुछ बनाएगा, समझी तुम? वो हाथ उठाकर उसे कहता हुआ कहने लगा, अपना हुलिया दुरुस्त करो, अभी के अभी ट्राउज़र कमीज़ पहनो, दुपट्टा लो, और उसके बगैर अगर तुम मुझे नजर आई तो आज रात ही तुम्हें रुखसत करवा के अपने कमरे में ले जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे सारे शौक इस तरह से पूरे करूंगा कि सब कुछ भूल जाओगी। तबरेज़ खास ज़दा के अल्फाज सुनकर वो अंदर तक से घबरा चुकी थी। उसे तबरेज़ खान ज़दा से डर लगने लगा था, लेकिन वही अना बार बार आड़े आ रही थी कि ऐसे मर्द से हरगिज़ शादी नहीं करेगी, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो तुम को गुलाम बनाना चाहता है। अगर वो इसे शादी कर लेगी तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तबरेज़ खानज़दा की कमज़ोरी पर ही वार करने वाली थी। अगले ही रोज़ से कॉलेज से ये नोटिफिकेशन आया था कि इसकी क्लासेस एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं और असाइनमेंट्स भी सबमिट करवानी है। यहाँ से इसका कॉलेज 1 घंटे की दूरी पर था। वही इब्रार साहब से बार बार जिद करने लगी थी कि पापा मुझे कॉलेज जाना है, प्लीज़ मुझे वापस शहर जाने दें, लेकिन यहाँ से कॉलेज 1 घंटे का रास्ता है, मैं कैसे जाती रहूँगी। जैसे ही मेरी क्लासेस ख़त्म होंगी तो मैं वापस गांव आ जाऊँगी, प्रॉमिस। वो बस किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन तभी इब्रार साहब कहने लगे कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी जाने वाली। जब उसे यूँ बार बार मिन्नत तरले करते अम्मा साहिब ने देखा तो इनका दिल मोम हो चुका था। कहने लगी कि इब्रार कितनी सख्ती कर रहे हो तुम बच्ची के साथ, बच्ची का साल पर ख़राब हो जाएगा। जब बच्ची बोल रही है कि उसने कॉलेज जाना है तो क्या खराबी है, जाने दो उसे, वैसे भी तुम्हें क्या पैसों की कमी है जो तुम 1 घंटे का सफ़र उसको तय करवा नहीं सकते। इब्रार एक गहरी सांस खारिज करके रह चुका था। कहने लगा कि ठीक है, लेकिन तुम वापस यहीं गाँव ही आओगी, तुम्हें शहर में रहने की इजाज़त नहीं है। सुबह तुम ड्राइवर के साथ जाओगी और शाम को ड्राइवर के साथ ही वापस आओगी, समझी तुम? वो तो चुप हो चुकी थी। उसका एक फ्रेंड था जब बार जो उसे बहुत बार शादी के लिए प्रपोज कर चुका था। वो इस कदर बागी हो चुकी थी कि दिल ही दिल में सोचने लगी कि बस किसी तरह से एक बार जबार को मनाकर उसे कोर्ट मैरिज कर लेगी और फिर कोई कुछ भी कर नहीं पाएगा। कम से कम इस खड़ूस तबरेज़ खानज़दा से तो जान छूट जाएगी। वो सारी प्लानिंग अपने दिमाग में कर चुकी थी, लेकिन जैसे ही बगैर दुपट्टे के वो कॉलेज जाने लगी तो तबरेज़ के हाथ लग चुकी थी। वो कहने लगा कि हमारे खानदान में औरतें गैर ज़रूरी घर से बाहर जाती नहीं, अगर जाएं भी तो अपने गिर्द बड़ी चादर लेकर जाती हैं। तुमने कॉलेज जाना है तो चादर करके जाओ और वहाँ पर भी तुम दुपट्टे में ही रहोगी। उसे साफ इनकार करने लगी थी। कहने लगी कि आप कौन होते हो मुझ पर अपनी मर्ज़ी मुसलत करने वाली? मैं डैड को बताऊंगी अभी। और आपका ये हाल है, आप जैसे शख्स के साथ अगर मेरी शादी होगी तो न जाने क्या हासिल करेंगे। मैं आपके साथ आपकी ज़र खरीद गुलाम नहीं हूँ। जैसा मेरा दिल करेगा मैं वैसे ही करूँगी, वैसे ही जाऊँगी। तबरेज़ खानज़दा जानता था कि ये ऐसे नहीं मानेगी, इसलिए वो सीधा उसे दीवार से पिन अप करता उसकी गर्दन पर शिद्दत लुटा चुका था। 2 जगह पर निशान बन चुके थे। फिर उसे शीशे के सामने खड़ा करके कहने लगा कि अब जाओ इसी हालत में, और मैं कॉलेज में जो भी सवाल करेगा उसको बताती फिरना कि हुआ क्या है तुम्हें। उसका चेहरा तो शर्म से सुर्ख हो चुका था। कहने लगी, घटिया इंसान, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? मेरे साथ शर्म नहीं आती तुम्हें? वो मुस्कुरा कर कहने लगा, अभी अगर करना चाहूँ तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। वैसे भी तुम एक मॉडर्न आज़ाद ख्याल लड़की हो ना, तो तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ रोमांस के ज़ुमरे में आता है। रोशानी तो पैर पटक वहाँ से बाहर चली आई थी, लेकिन अपने बाबा के कहने पर वो बाहर तो चादर ही लेकर आई थी, लेकिन कॉलेज में पहुँचते ही उसने वो चादर उतार दी। लेकिन एक स्कार्फ उसने अपने गर्दन के गिर्द लपेट लिया था ताकि कम से कम वो लव बाइट के निशान छुपा सके। उसे यूँ पहली बार स्कार्फ में देखकर उसकी सहेलियाँ तो हैरानी रह गई थी। जैसे वो उनके पास आकर बैठी तो वो सवालों की बुछाड़ करने लगी शुरू हो गई थी।
कि आज ऐसा क्या हो गया। तुम तो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी कि कभी गाँव नहीं जाओगी और अगर कभी भी उस खड़ूस कज़न से शादी नहीं करूँगी, लेकिन ये तो तुम एक दिन में ही बदल गई। ये अल्फाज सुनना थे कि वो फ़ौरन कहने लगी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रोशान खानज़ादा को कोई भी नहीं दबा सकता, ये तो बस मैंने ऐसे ही ले रखा है। कुछ देर के बाद जब उसे गर्मी महसूस हुई तो वो खुद ही अपने स्कार्फ को लूज़ कर चुकी थी और ऐसे में उसकी गर्दन पर मौजूद निशान देखकर तो उसकी सहेलियाँ शॉक हो चुकी थी। बार बार उससे पूछ रही थी कि ये क्या, तुम्हारी गर्दन पर किस चीज़ के निशान बने हुए हैं। वो कहने लगी कि कुछ नहीं, गांव में मच्छर बहुत होते हैं, मच्छर ने काट लिया है। लेकिन उसकी सहेलियाँ उसे चिढ़ा कर कहने लगी कि ये मच्छर के निशान तो नहीं लगते ना, कोई मच्छर बहुत ही बड़ा था कि यही कोई 6 फुट का, तभी तो निशान इतना बड़ा पड़ा है। अभी तो वो ये बातें कर रही थी कि अचानक क्लास में कोई दराज का शख्स दाखिल हुआ और फ़ौरन साथ बैठी सहेली से गोली मार कर कहने लगी कि जब चुप करो, तुम दोनों खड़े हो जाओ, क्लास में आ गए हैं, जानती हो कितनी सरकट है ये। और फिर वो दोनों ही उसे देखती हुई खड़ी हो चुकी थी कि रोशानी की नज़र जैसे ही सामने खड़ी शख्स पर पड़ी तो वो दंग रह चुकी थी, क्योंकि ये कोई और नहीं तबरेज़ था। तबरेज़ खानज़ादा 3 पीस सूट में मलबूस बालों को सलीके से जेल से सेट किए हुए, वही रोबदार आंखें और पुरकशिश शख्सियत। और उसके साथ बैठी सहेली कहने लगी कि तुम तो 2 दिन कॉलेज आई नहीं और कसम से यार इंग्लिश के सर बहुत ही अच्छे हैं, इतना अच्छा समझाते हैं कि क्या बताऊँ, बिल्कुल किसी हीरो जैसे। रोशानी का तो सांस ही अटक चुका था। पूरी क्लास वापस बैठ चुकी थी लेकिन रोशानी यूं ही बुत बनी खड़ी रही थी। रोशानी को अंदाज़ा ही नहीं था तबरेज़ खानज़ादा ने जब यूं उसे खुद को देखते पाया तो माथे पर बाल पड़ चुके थे, क्योंकि ये लड़की बगैर किसी पर्दे के वहाँ पर बैठी हुई थी। बाकी लड़कियों ने तो फिर भी दुपट्टा गले में रखा हुआ था, लेकिन ये तो बाल खुले स्कार्फ को भी गले में यूं बांध रखा था कि जैसे कोई स्कार्फ हो ही ना, बल्कि कोई पटा हो, सिर्फ और सिर्फ उस निशान को छुपाने के लिए। तबरेज़ खानज़ादा गला खंगार कर कहने लगा, रोल नंबर 21 किन ख्यालों में गुम हो चुकी हैं, आप बैठ जाइए। इसकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन बैठ चुकी थी। अब तक वो उस शख्स को गवार अनपढ़ समझ रही थी, लेकिन ये तो इस कॉलेज का ही टीचर निकला। वो जो भी सवाल समझाने के बाद फ़ौरन रोशानी को ही बार बार खड़ा करके उससे ही पूछ रहा था कि अभी अभी जो मैंने समझाया है मुझे बताओ। उसका दिमाग तो माफ हो चुका था। पहले कहा उसने कोई क्लास ध्यान से ली थी, जब उसे सवाल का जवाब ना आया तो तबरेज़ खानज़ादा ने स्टिक उठा ली, बहुत गुस्से से टेबल पर मारकर कहने लगा, कहाँ ध्यान है आपका और ये क्या तरीका है? आप किसी फैशन शो में आई हैं? कॉलेज में दुपट्टा कहाँ है आपका और बाल किसने खोले हुए हैं आपने? आप जैसी लड़कियां शायद कॉलेज में लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए आती हैं। माँ बाप ने कुछ ज़्यादा ही डील दे रखी है आपको। जल्दी से अपना ये हुलिया दुरुस्त कीजिए वरना पूरी क्लास सामने बेंच पर खड़ा कर दूंगा। तबरेज़ की डांट सुनकर तो उसने जल्दी से अपने बालों को बांधा था और वो स्कार्फ जो उसने गले में लिपटा हुआ था उसके गले में डाल दिया गया था और एकदम से उसे तबरेज़ खानज़ादा से खौफ और शर्मिंदगी एक साथ महसूस होने लगी थी। क्लास में की जितनी भी लड़कियां थी वो सारी की सारी तबरेज़ खानज़ादा की पर्सनैलिटी पर फिदा हो चुकी थी, लेकिन ये शख्स एक वक्त में गाँव का सारा काम भी संभाल रहा था और साथ साथ यहाँ कॉलेज भी पढ़ा रहा था। ब्रेक का वक्त आया तो वो कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ कुछ खाने के लिए गई थी। वहीं पर उसे कॉल पर बात करता देखकर तबरेज़ भी सुनाई दिया था। तभी उसे पहले पता था कि ये लड़की इस कॉलेज में पढ़ रही है। उसने ड्राइवर को भी घर भेज दिया कि तुम चले जाओ, मैं खुद रुझाने को घर ले आऊँगा। जैसे ही छुट्टी हुई वो कॉलेज से बाहर निकली तो बाहर उसकी गाड़ी खड़ी थी। तबरेज़ उसके साथ से गुजरा तो कहने लगा कि मेरे साथ आ जाओ, ड्राइवर जा चुका है। ये सुनते ही उसके तो तन मन में आग लग चुकी थी। फ़ौरन कहने लगी कि मैं आपके साथ क्यों जाऊँ, ये ड्राइवर कहाँ है, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। तबरेज़ ने अपना लहजा नरम रखते हुए गाड़ी की खिड़की खोली और फिर कहने लगा कि जब मैं कह चुका हूँ कि मैं उसको भेज दिया है तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि तुम मेरे साथ ही जा रही हो। आकर बैठो गाड़ी में, वरना तुम्हारे लिए मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। मेरे और भी बहुत से काम है। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। जिस कदर वो गुस्से में था उसे छोड़कर ही ना चला जाए। जाता देखकर रोशानी जल्दी से ही गाड़ी में बैठ चुकी थी। वो गाड़ी बड़ी स्पीड से चला चुका था। डरी सहमी चुपचाप सी रोशानी उसे अच्छी लग रही थी। फिर कहने लगी कि आज के बाद यूं ही तुम स्कार्फ और दुपट्टा लेकर ही कॉलेज आया करूँगी।
اگر تم نے نہ کی تو اپنی سزا یاد رکھنا۔ وہ چپ ہو چکی تھی، نہ جانے کیوں تبریز خان زدہ اسے خوف آنے لگا تھا، لیکن جلدی ہار تو وہ بھی نہیں ماننے والی تھی۔ رچا نے خود سے یہ عہد کر چکی تھی کہ دیکھنا تمہیں ایسے سبق سکھاؤں گی کہ خود ہی مجھ سے پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ تم جیسا شخص جو اپنے گاؤں کے ریت رواج میں بندھا ایک بد کردار اور بد چلن لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی بنانا پسند نہیں کرے گا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ ایک بہت بڑا پلان بنا چکی تھی۔ اگلے روز جب وہ کالج گئی تو لڑکا جبار اسے کئی بار شادی کے لیے پرپوز کر چکا تھا۔ وہ خود ہی اس کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ یار مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم یہ نوٹس بنانے میں میری ہیلپ کر دو۔ جبار کے تو منہ میں پانی آ چکا تھا، وہ تو خوشی کے مارے اس کے پاس بیٹھا اور اسے سب کچھ سمجھانے لگا تھا اور امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹس کروا رہا تھا۔ جب ایک کلاس میں لیکچر دینے کے بعد تبریز خان زدہ باہر نکلا تو سامنے گارڈن میں بینچ پر ان دونوں کے بیٹھے دیکھا تو اس کے اندر خون کھول چکا تھا۔ کبھی اس کے ساتھ اس انداز میں بیٹھی نہیں تھی، پھر وہ کسی اور کے ساتھ اسے ایسے بیٹھا ہوا کیسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ چلتا ہوا وہیں پہ آ گیا تھا اور کہنے لگا کہ یہاں پر کیا جا رہا ہے؟ جبار تو ہڑبڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا تھا، کہنے لگا سر وہ ہم یہاں پر بیٹھ کر نوٹس بنا رہے ہیں۔ وہ ماتھے پر بال ڈالے ہوئے کہنے لگا کہ نوٹس بنانے ہیں تو جا کر لڑکوں کو بنواؤ۔ اور آپ مس روشا نے کیا آپ کی کلاس میں کوئی ٹاپر لڑکی نہیں ہے جو آپ جیسی نالائق کو نوٹس بنوا سکے؟ آئندہ کے بعد میں آپ کو کسی بھی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ روشانی نے بھی حد سے پھٹ چکی تھی۔ جبار کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ جبار تم میرے ساتھ چلو، ہم کہیں اور جا کر بیٹھ جاتے ہیں، نوٹس بنا لیتے ہیں۔ ویسے بھی یہ لوگ جتنی مرضی ٹرائی کر لیں خود کو شہری ثابت کرنے کی یہ بن نہیں سکتے۔ ان کی سوچ میں ہی گاؤں کی مڈل کلاس سو کارڈ گوارا جیسی ہی رہے گی جو ہر لڑکا لڑکی کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ اس وقت اسے سنا چکی تھی۔ جبار تو خود حیران تھا کہ روشا سر سے ایسی بات کیسے کر سکتی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے ایک ایسی کلاس میں لے آئی تھی جو خالی کلاس تھی۔ تبریز خان زدہ اس کے پیچھے آنا چاہتا تھا، لیکن تبھی سینئر پروفیسر نے اسے بلا لیا تھا اور وہ ان کی بات سننے کے لیے وہیں پہ چلا گیا تھا۔ وہ ان کی بات سننے لگا۔ جب واپس لوٹا تو روشانی کلاس میں نہیں تھی۔ روشانی کو پتا تھا کہ وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے اب ضرور آئے گا۔ جبار اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کے وجود سے اٹھنے والی مہنگی پرفیوم کی خوشبو اپنے آپ پر نچھاور کرتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اپنا ہاتھ روشانی کی کمر پر رکھ دیا تھا اور اپنے قریب لے آیا، کھینچ کر لیا اور کہنے لگا یار تم مجھے پہلے کیوں نہیں ملی؟ تو کب سے تڑپ رہا تھا تمہیں اپنی گرل فرینڈ بنانے کے لیے۔ روشانی نے اسے اپنے قریب اتنا دیکھا تو پیچھے جھٹکنے لگی، کہنے لگی اوہ شٹ اپ جبار، اپنی لمٹ میں رہو، میں صرف تم سے نوٹس بنوانے کے لیے آئی تھی۔ جبار کہنے لگا اوہ بس بھی کرو، مجھ سے زیادہ فائق ہو اور تم مجھ جیسے نالائق سے ہی تم نے نوٹس بنوانے تھے۔ ساری کھچڑی جانتا ہوں میں، تم جیسی لڑکیوں کو بس جان بوجھ کر نخرے کرتی ہیں۔ پوری کلاس میں مجھ سے زیادہ ہینڈسم لڑکا تم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میرے مسلز، میرا قد کاٹ اس قدر ہاٹ ہوں کہ لڑکیاں دیکھ کر مجھ پر فدا ہو جاتی ہیں، تبھی تو تم میرے پاس آئی ہو تاکہ تمہارے ابھرنے والے جذبات میں قابو رکھ سکوں۔ وہ بڑے بے باک انداز میں جیسے جملے ادا کر رہا تھا۔ روشانی کے تو پورے وجود میں ہی سنسنی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ وہ فوراً اسے پیچھے ہٹا کر کہنے لگی کہ چھوڑو مجھے، یہ کیا طریقہ ہے؟ میرے دل میں تمہارے لیے ایسا کچھ بھی نہیں، میں صرف تمہارے ساتھ کچھ دیر بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ لیکن وہ اسے اپنے مزید قریب کرتا ہوا چلا جا رہا تھا اور اسے پہلے کہ وہ کچھ کرتا دھڑلے سے دروازہ کھلا اور سامنے تبریز خان زدہ کھڑا تھا۔ دونوں اس وقت ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تبریز خان زدہ آپے سے باہر ہو چکا تھا اور اسے لگا کہ وہ اس لڑکی کو ڈانٹے گا، سختی کرے گا اور کہ یہ اپنی حدود میں آ جائے گی، لیکن یہ منظر دیکھنے کے بعد تو اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ زناٹے دار تھپڑ اس نے اس کی لڑکی کے منہ پر مارا تھا، اور جبکہ روشانی کو بازو سے پکڑ کر ایک تھپڑ اسے بھی مار چکا تھا، اور اس لڑکی کو تو اس نے کالج سے ڈسمس کروا دیا تھا۔ جبکہ روشانی کو پکڑ کر وہ گاڑی میں لے کر آیا تھا اور کہنے لگا تم اس قدر پر کردار ہو سکتی ہو، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں کہ یہ جانتا ہوں کہ تم جیسی لا ابالے پن میں ڈوبی ہوئی لڑکی یہ سر کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ میرے ساتھ تمہارا رشتہ نہ ہو سکے، تم اسے شادی نہ کر سکو۔ تو ٹھیک ہے، میں ابھی گھر جا کر بچپن کی اس منگنی کو توڑ دوں گا، لیکن تم جیسی بے حیا لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا۔ تبریز خان زدہ کہ یہ الفاظ سن کر تو
रोशाने चुप हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे, लेकिन जैसे जैसे घर करीब आ रहा था रोशाने उसे तो ये डर आ रहा था कि अगर तबरेज़ ने घर जाकर उसके बाप के सामने ऐसा कुछ बता दिया तो वो क्या बनेगा। उसके पापा सबके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, जो जीते जी मार जाएंगे। और उसकी आंखों में फ़ौरन से आंसू आ चुके थे। रोते रोते उसने कहने लगी कि तबरेज़ प्लीज़ मेरे माँ बाप से कुछ मत कहना, वो पूरे घर वालों के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझसे ये सब कुछ हो गया। तबरेज़ अब उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। जैसे ही वो दोनों घर पहुंच चुके सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह चुका था। शादी की तैयारी में मगर घर वाले दोनों के ही शादी का जोड़ा लेकर आए हुए थे और ये बात तय पाई थी कि अगले जुमे को इन दोनों को निकाह के बंधन में बांध दिया जाए। अम्मा साहिब बहुत खुश थी, वहीं इब्रार साहब भी खुश थे। पूरे घर में रौनक लग चुकी थी और सारी लड़कियां वो इन छोटी कज़न खूबसूरत कपड़े उठा कर अपने साथ लगाकर इन्हें दिखा रही थी कि आपकी शादी है, शादी पर हम ये जोड़ा पहनेंगे, कितना मज़ा आएगा। हमने तो पूरे 10 दिन की ढोलकी रखनी है, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। और तबरेज़ लाला जान आप हमें नहीं रोकेंगे, ना ही गुस्सा करेंगे। हम आपकी शादी पर सारे अरमान पूरे करेंगे। आहर को हमें इतनी प्यारी जान सी भाभी जो मिलने वाली है, बिल्कुल किसी बारबी डॉल जैसी। रोशानी को तो अपने अंदर तक शर्म उतरती हुई महसूस हो रही थी। वो शदीद शर्मिंदा थी। उसने नज़रें झुका ली थी और उस घर में रहने वाले एक एक शख्स जिससे रोशानी ने कभी ठीक से बात भी नहीं की थी, वो सब इस कदर खुश थे। वो भी फिर से आगे पलके बिछा रहे थे। आहर वो थी ही क्या, कुछ भी नहीं, एक आम सी लड़की, लेकिन वो लोग उसे बेलौस मोहब्बत करते थे क्योंकि वो तबरेज़ खानज़ादा के नाम से मंसूब थी। तबरेज़ खानज़ादा ने ही उसे इतनी इज्जत बख्श रखी थी। वो इल्तिजाइया नज़रों से तबरेज़ को देख रही थी। वो चाहता था कि अभी ये सारी तैयारी रुकवा दे, लेकिन अपने बड़ों के चेहरे पर खुशी देखकर तो वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया था। और रोशाने भी अपने कमरे में आ चुकी थी। उसे सच में अब खूब आने लगा था। वो तो बस तबरेज़ को चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन जिस एंगल से वो इन दोनों को देख रहा था, रोशानी को खुद उसकी नज़रों में गिरते हुए महसूस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात को जब सब अपने अपने कामों में खाना खाकर सोने के लिए चले गए थे तो उसने ट्राउज़र कमीज़ पहना और दुपट्टे को अच्छी तरह से कंधे पर डाला हुआ था और बालों को भी चुटियाँ करके बांधा हुआ था। और फिर तबरेज़ खानज़ादा के कमरे के बाहर पहुंची। तबरेज़ काफ़ी गुस्से में लग रहा था। जैसे उसे देखा तो कहने लगा किस लिए आई हो, जाओ चली जाओ यहाँ से। लेकिन रोशानी की आंखों में आंसू थे। वो रोती हुई उसके सामने आई थी और कहने लगी कि प्लीज़ तबरेज़ आपको किसी को कुछ मत बताइएगा, सब लोग इतने खुश हैं और मैंने एक लंबे अरसे के बाद सबको हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देखा है। अगर एक फैमिली क्या होती है, रौनक क्या होती है, मैंने अब महसूस किया है। अगर आप इनको सब कुछ बता देंगे तो मैं सबकी नज़रों में गिर जाऊंगी और सब लोग उदास हो जाएंगे। तबरेज़ के सामने आकर खड़ा हो गया, दोनों हाथ सीने पर बांध कर कहने लगा तुम्हें सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम सबकी नज़रों से गिर जाओगी, बाकी किसी के दिल में पे क्या गुजरता है, तुम्हें उसकी परवाह ही कैसी है। तुम जैसी लड़कियां तो अपने मंगेतर से रिश्ता तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। रोशानी रोते हुए सफाइयाँ पेश करने लगी थी कि नहीं प्लीज़ 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 मेरे बारे में गलत मत सोचिएगा, मैं बस आपको तंग करने की कोशिश कर रही थी, मेरे बारे में गलत मत सोचिएगा। तंग करने के लिए इसके साथ बैठी नोट्स बना रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था वो मेरे लिए दिल में इस तरह का खोट रखता है। वो मेरे यूँ फ़ायदा उठाना चाहेगा कि, लेकिन मेरी कोई रजामंदी शामिल नहीं थी। तबरेज़ खानज़ादा कहने लगा कि इस वजह से कहा जाता है कि लड़कियों को अपने घर के मर्दों की बात माननी चाहिए, खुद को पर्दे में रखना चाहिए, लेकिन तुमने तो मेरी बात नहीं मानी, चली जाओ यहाँ से। इससे पहले कि तुम्हारा चेहरा देखकर तो मुझे वो वाक़या याद आ जाए और जाकर मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूँ। तुम मुझ जैसे शख्स को डिज़र्व ही नहीं करती ही नहीं हो। ये अल्फाज सुनाते कि रोशानी को लगा कि जैसे वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो चुकी है। वो वाकई तबरेज़ खानज़ादा को डिज़र्व नहीं करती। वो वापस कमरे में लौट आई। सारी रात उसने यूं ही बैठे हुए रोते गुजर गई। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर भी वो मौजूद नहीं थी। सब लोग उसके कमरे में आ चुके थे। आखिर क्या हुआ तुम्हें तबरेज़ खानज़ादा नहीं आया? आहिस्ता आहिस्ता सबकी मोहब्बत और खुलूस देखकर वो बदलने लगी थी, उनसे ही मोहब्बत करने लगी थी। और एक रोज़ खुद ही किचन में जाकर कहने लगी कि मामा मुझे खाना बनाना सिखाए, मैं आज तबरेज़ के लिए अपने हाथों से खाना बनाना चाहती हूँ। फरजाना बेगम तो
हैरान रह गई थी। कहने लगी कि बेटी बस कर दो, कहीं मैं चकरा कर गिर ही ना जाऊं। इस रोज़ फरजाना बेगम उसे जैसे जैसे बताती गई थी। वो अपने हाथों से तबरेज़ के लिए बिरयानी बनाई थी। दिन के वक्त तबरेज़ घर आया था। जब उसने बिरयानी खाई तो वो वाकई ही लजीज बनी हुई थी। मुस्कुरा कर कहने लगा, आज तो बिरयानी का टेस्ट काफ़ी अलग लग रहा है। किसने बनाई है ये बिरयानी? यकीनन फरजाना चाची आपने बनाई होगी। लेकिन वो मुस्कुरा कर कहने लगी कि मैंने नहीं, मेरी इस लाडली ने बनाई है। आज तो खुद ही किचन में आ गई थी और मैं तो तबरेज़ के लिए खुद खाना बनाऊंगी। रुचानी का चेहरा सुर्ख होने लगा था, लेकिन तबरेज़ के चेहरे पर संजीदगी छा चुकी थी। शादी को चंद रोज़ ही बाकी बचे थे। पूरा खानदान खुश था। रोज़ रात को ढोलकी रखी जा रही थी और रौनक लगाई जा रही थी, लेकिन तबरेज़ यूं ही संजीदा था। ये बात खानदान के लोगों ने भी नोट की थी कि जब लोगों ने ये बातें बनानी शुरू कर दी वो एक बार फिर तबरेज़ के पास आई थी। कहने लगी कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करनी तो आप प्लीज़ अभी इससे इनकार कर दें। खानदान वाले बातें बना रहे हैं कि दूल्हा इतना संजीदा क्यों है। ये सुनकर वो कहने लगा कि तुम्हें कब से लोगों की बातों की परवाह होने लगी थी। रुशाने तुमने कभी किसी को खातर में लाया ही नहीं है। आज तुम्हें 4 लोग क्या कहेंगे, इस बात की फिक्र सताने लगी। वो उसका चेहरा देखने लगी थी। कहने लगा कि ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शादी तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, मेरी ही निकाह में मरोगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारा हक नहीं दूंगा। कहकर तबरेज़ वहाँ से जा चुका था और रोशनी रोशाने फूट फूट कर रोई जा रही थी। रुखसती का वक्त आ चुका था और शादी बड़ी धूमधाम से की गई थी। फरजाना बेगम एक बार फिर अपने बड़े प्यार से सारे दोस्त तहरीरी से समझाए थे और फिर ये भी कहा था कि अगर तुमने अपने शोहर के दिल जीत होगी तो फिक्र मत करो, वो तुम्हें भी जहाँ में भी ले आएगा और तुम्हारी पढ़ाई और तबरेज़ में इजाज़त देंगी, तुम जारी रख सकती हो। और वो हर बात से खामोशी सुन रही थी। दुल्हन बनी तबरेज़ खानज़दा के कमरे में बैठी थी। कुछ देर के बाद तबरेज़ कमरे में आया और जी लड़की कभी इसकी मोहब्बत थी, लेकिन उसकी हर दर में जो वो देकर एक तरफ से उसके दिल में उतर चुकी थी। एक गहरी सांस फारस को कर कहने लगी थी कि कभी किसके लिए बैठी कंटर करके तो मैं लगता हूँ कि मैं तुम्हारे दिल में जो फरेब उसने देख लिया है तुम्हारे पास पला आऊँगा और तुम्हारे साथ मोहब्बत भरी बातें करूँगा तो तुमने तो मैं पसंद ही नहीं, तो फिर आप ये सब कुछ ढोंग जाने की ज़रूरत नहीं है। उठो, जाकर चेंज करो और बेड को भी साफ़ करो, मुझे नींद आई है। सुबह मुझे फिर शहर जाना है। रुशाने की आंखों में आंसू आए थे और वो मासूमियत से कहने लगी कि आप मुझे मुँह दिखाई नहीं देंगे कि आपके लिए इतनी सी भी सीटी सुन रही हूँ। लेकिन बनी दुल्हन बनी बोली थी, तब्दील के दिन में कुछ हुआ था। शादी रोज़ ऐसा नहीं होता, ये बात रोज़ाना भी नहीं होती। वो चलते चलते हुए उसके पास आई और उसने घूंघट उठाकर जब देखा तो शर्माई बिल्कुल रवायती दुल्हनों की तरह बैठी थी और भी इसके चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई थी। वो फ़ौरन से लगा कि दादी माँ के उन्होंने दिए हैं तो मैं ये भारी जोड़ी पहना पसंद नहीं होगा ना, साहब ये कुछ ओल्ड फैशन लगेगा। कुछ दिन पहनना और फिर उतार देना ताकि दादी माँ का दिल ना टूटे हो और कुछ हो चुकी हो। शादी मुस्कुरा दी थी और उसे लगा था कि अब तबरेज़ उससे मोहब्बत भरी बात भी करेगा तो करेगा, लेकिन उसका वोट हो चुका है। लेकिन अब प्लीज़ उठो। और दरमियान में एक तबरेज़ सकिया और कम्फर्ट उठाकर बाहर जाने लगा और फ़ौरन उसका हाथ पकड़ चुकी थी। कहने लगी कि कहाँ जा रही हैं? अब वो कहने लगा कि बाहर सोना है, वैसे भी सब घर वाले सो चुके हैं, कोई मुझे ज़्यादा देखेगा भी नहीं। लेकिन रुझान ने उसका हाथ पकड़ चुकी थी। अगले इलम फ़ौरन उससे के सीने से जागने लगी थी। प्लीज़ जब मेरी बात का यकीन करें, मैं नहीं चाहती थी, पता नहीं कब मुझे आपसे मोहब्बत होगी। मुझे आपको भी पता है कि मैं किस कदर ज़िद्दी हूँ और हर तरफ भी हूँ। आप ही इतनी अच्छी हैं रुशाने खानज़दा, आप बिल्कुल बदल कर रख दिया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मासूम सी छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची समझ कर वो कान पकड़ कर उसके सामने मुंह बसोड़ कर उठक बैठक करने लगी थी। तबरेज़ खानज़दा को उस वक्त वो बेतहाशा क्यूट लग रही थी और वो भी कुछ लम्हों में पकड़ा जा चुका था। कहने लगा कि ठीक है, सो जाओ।
कमरे में, लेकिन फिर मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वो वहाँ से सारी लाग चुकी थी और कि पक्का बिल्कुल भी नहीं करीब आऊँगी। और जो राज जो है बीच हो चुकी हैं। अगली सुबह वलीमा था और हवेली की सारी लड़कियां उसे देखकर हैरान थी। सुबह सुबह उठकर उसने तबरेज़ के लिए खुद नाश्ता तैयार किया था और फिर बाकी घर के कामों में भी वो साथ साथ थी। बड़ों से घरदारी भी सीख ली थी। उसकी सारी कज़न्स से हैरान थी कि पता नहीं तबरेज़ लाला ने इसको क्या गोल कर पिला दिया है कि उसके आगे लड्डू की तरह घूमने लगी थी और दुपट्टा भी कभी उसके सर पर रखने देती थी। और जब वो इतनी बदल चुकी थी तबलीग भी क्यों कर उसे सजा देता है और फिर वो उसे ऐसे ही चाहता था। लेकिन वो मुकम्मल पर्दे में सबके सामने रही, लेकिन कमरे में आते बिल्कुल बेबाक होकर उस अपने जिन्होंने अपनी इज्जत नहीं उतारने और उसका रवैया भी फरोशाना के साथ ठीक हो चुका था। वो गाँव में काफ़ी गोल मिल चुके थे और उसका कॉलेज फिर से शुरू हो गया था। एक रोज़ मुझसे अपने साथ शहर लेकर एक घर के सामने खड़ा कर दिया था और उसने चाबी रोशनी को दी थी। रोशनी हैरत से उसके चेहरे को देखने लगी थी। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, चलो तुम्हारे घर, आज से हम दोनों यहाँ रहेंगे, कभी कभी वीकेंड पे गाँव चक्कर लगा लिया करेंगे। मैंने तो आपको नहीं बोला था कि मुझे जाना है, मैं तो वहीं पर ठीक थी। लेकिन तबरेज़ उसका माथा चूम कर कहने लगा कि नहीं, तुम्हें मेरे लिए इतनी कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। तुम बदल चुकी हो और मेरी मोहब्बत बदल चुकी है और मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम एक मर्द को बेलौस मोहब्बत देगी। मर्द कायनात की सारी खुशियाँ ना कर तुम्हारे कदमों में रख देगा। बस ये बात याद रखना। रोशान ने उसे अपने सीने से लगाए घर में ले आया और रोशान बहुत खुश थी। कहने लगा कि हाँ, तुम्हें शौक है ना बेबाक नाइटीज़ पहन कर घूमने का, छोटे छोटे कपड़े पहनने का। अब ये घर तुम्हारा है और मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है जहाँ पर तुम बगैर कपड़े किसी भी पर्दे में होगी तो घूमो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो उसकी कान की नोक को काट कर बोला था तो वो अंदर तक झुरझुरी ले रह चुकी थी और उसके सीने में सर छुपा के लेकिन तबरेज़ के इरादे नेक नहीं थे। वो अपना हाथ उसके कमर में फेरते हुए खींच कर अपने करीब कर गया था और उसके वजूद की सख्ती परेशानी महसूस हो रही थी। इसे हैरान से देखने लगी जब तक प्रेस कहने लगी थी कि जल्दी से नाइटी पहन कर तैयार हो जाओ। इसके बाद आज मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ। शर्म से लाल सुर्ख हो चुकी थी और उसके लिए कहने का मतलब तक उसने नाइटी पहनी थी और फिर वो रात दोनों ने पुरसुकून तरीके से गुजार चुके थे। तबरेज़ ने यही सोच रखा था कि जब तक कि उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती वो बाप नहीं बनेगा। अम्मा साई की ख्वाहिश के मुताबिक उसने शादी कर ली थी, लेकिन अभी बच्चे पैदा करने के लिए उसकी उम्र काफ़ी कम थी। इसकी मोहब्बत पाकर खुद को दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की समझने लगी। लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको नावल पसंद है। अपने लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है।